Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, where आज हम एडमिशन के एक क्वेश्चन को एक और कदम आगे लेकर जाएंगे. उसके पहले आपको याद दिला देता हूँ that in the past around 5-6 lectures, कैपिटल को रेशियो में किस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लेकर आना है, इस पे हमने काफ़ी ध्यान दिया है. बट लेजर्स के स्टाइल में ही वो सॉल्व किया है, क्योंकि क्वेश्चन में लेजर्स पूछे गए थे. टुडे वी विल, बिकॉज द क्वेश्चन से जर्नल एंट्रीज, हम जर्नल एंट्रीज भी बना लेंगे. नॉर्मल क्वेश्चन है, रिपीट, हम लोग रूटीन को रिपीट कर रहे हैं, बट जर्नल एंट्रीज के अलग प्रेजेंटेशन के साथ. तो शुरू करते हैं. सो here goes. This is today's question, and the very bottom part or the last statement, even though मुझे पूरा पढ़ना है, but पहले बता देता हूँ कि अलग क्या है. Pass necessary journal entries in the books of the partnership firm and a balance sheet of the new firm. So जब आप आपके ledgers को बनाओ, प्लीज़ इतना गांठ बांध लो, समझ लो कि only the balance sheet above is applicable or eligible for marks. The P&L account, the bank account, there is no goodwill account today, and the partners capital account. आप वो बना लो, मैं भी बनाऊंगा, बट मार्क्स नहीं मिल पाएगी. यस, आप में से एक दो या काफ़ी लोग पूछेंगे तो बना ही क्यों रहे हो. इसके बगैर जो जर्नल एंट्रीज का काम है उसको सक्सेसफुली करेक्टली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, और मुझको चांस नहीं लेना, क्योंकि मुझे वो रिस्क नहीं उठाना, क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चों को जो बोर्ड एग्जामिनेशन से वो 2 बार तो देने नहीं है. हाँ, तो जहाँ पे थोड़ा रिस्क कम होता है वो तरीका थोड़ा बेहतर होता है. तो ऊपर का बैलेंस शीट आपको मार्क्स देगा, और ये जो मेरे पीछे है जर्नल्स, 2 या 3 पेज के आप जर्नल्स को बना सकते हो, ये आपको मार्क्स देगा. इन द बुक्स ऑफ किशोर, राम एंड लाल, जिसमें मिस्टर लाल जो सॉरी किशोर और लाल जो है ये पुराने पार्टनर्स हैं, और राम नया पार्टनर है. ओके, तो कुछ इस तरह आपको याद रखना है. तो जैसे ऊपर दिया है, इन द बुक्स ऑफ किशोर लाल ओल्ड पार्टनर्स एंड राम इज द न्यू पार्टनर. जर्नल में थोड़ा आगे पीछे हो चुका है, बट दैट्स फाइन. उस सीक्वेंस के आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं गिरता. मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल ओल्ड पार्टनर्स, इनका रेशो है 3/4 and 1/4, तो 3:1. बैलेंस शीट है, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपिटल, लैंड फर्नीचर स्टॉक,
डेटर बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक। एक दो लेक्चर पहले या आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ज़रूर ये बताऊंगा कि व्हेनेवर अ एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर तो उसका आप एक खास अकाउंट बनाओ। ओके, तो आई एम गेसिंग वो एक आध लेक्चर में हो जाएगा और वो जो मैंने अभी डायलॉग कहा वो प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो घबराओ मत। दे डिसाइडेड टू एडमिट राम ऑन 1 अप्रैल 18। तो ये 1 अप्रैल 18 का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन पर सारे जर्नल एंट्रीज आने वाले हैं। ही शुड बी गिवन राम नया पार्टनर 1/5 शेयर। अभी ये 1/5 शेयर जब आ जाता है और आपने इसको पढ़ लिया तो आपको न्यू रेशो एज वेल एज द सैक्रिफाइस रेशो, ऐसा कुछ रुकने की ज़रूरत नहीं है। अभी के अभी आप देख सकते हो कि ओल्ड रेशो और नए पार्टनर के रेशो से न्यू रेशो कैसे आता है और सैक्रिफाइस रेशो। द न्यू रेशो इज 3:1 एंड द सैक्रिफाइस रेशो इन दिस क्वेश्चन इज द सेम लाइक द ओल्ड रेशो 3:1। ये आपको जैसे टाइम मिले आप बना लीजिए। हाँ, और उसके लिए वो क्या लेकर आएगा, कैपिटल 60,000 का आरटीजीएस से। अभी प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, आरटीजीएस कोई बड़ी बात नहीं है, उसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये सिंपल एक बैंक का ट्रांसफ़र होता है, मतलब पैसे ऐसे धन में नहीं आएगा, 2-4 नोट 10 नोट नहीं, बैंक के अंदर आएगा। और वैसे भी हमारे ये अकाउंट में तो बैंक ही है। दूसरा पॉइंट, गुडविल शुड बी रेज्ड एट 60,000। ये 2 या 3 क्वेश्चन में हुआ है। व्हेन अ न्यू पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, क्योंकि अगर वो गुडविल कैश में लाता है तो हम ओल्ड पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट अगर वो उसके पास पैसे ही नहीं है गुडविल लाने के लिए तो दूसरा तरीका है गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो है गुडविल रेज्ड। आपको गुडविल रेज करना पड़ता है। जब गुडविल रेज्ड होता है उसमें एक डेबिट होता है, उसमें एक क्रेडिट होता है, और उस डेबिट क्रेडिट के टाइम पे ओल्ड पार्टनर्स को उनका गुडविल उनके सैक्रिफाइस के हिसाब से मिल जाता है। तीसरा पॉइंट, अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, कर लेंगे जी 20%। चौथा पॉइंट, फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिशिएटेड, तो उसको डेप्रिशिएट कर लेंगे। पांचवा पॉइंट, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैपिटल की गाड़ी और रेशो की गाड़ी सेम होनी चाहिए, और अगर एडजस्टमेंट होगा उसको कहाँ से करना, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट टच मी नॉट, छूना मत, बैंक अकाउंट को टैली हम आखिर में करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज पहले मैं पूरा लेजर कर लेता हूँ, जल्दी कर लेता हूँ, और उसके बाद में मैं आपको जर्नल्स करके दिखा दूंगा। ओके, आपकी मर्जी है। कुछ बच्चे पहले जर्नल करते हैं बट कहाँ ना कहाँ पर उनकी गाड़ी अटक जाती है, क्योंकि उनके सारे जो जर्नल्स है वो लेजर पे भी डिपेंड करते हैं। तो मैं पूरा लेजर ख़त्म करता हूँ जैसे हमने नॉर्मली किया है। पहला स्टेप इज़ टू ट्रांसफ़र एवरीथिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट, बट प्लीज़ नोट कि ओनली द न्यू बैलेंस शीट विल गिव यू मार्क्स। बाकी का आप थोड़ा जल्दी अपनी गाड़ी को आगे भगाइए। क्रेडिटर 1,20,000, general reserve distributed among the partners is 9,000 and 3,000, and the capital 90,000, 48,000. Land and building on the asset side, so is furniture, stock, debtor, bill receivable. There is no mention of RDD, और RDD था में नहीं तो डेटर को बाहर लिख लिया, और बिल रिसीवेबल लास्ट में जो ऊपर का बैंक अकाउंट है 30,000 वो आ गया। तो ये थोड़ा जल्दी ही करना है, आप थोड़ा शॉर्टकट में करोगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज देयर इज नो मार्क्स फॉर दोज अकाउंट्स दैट इज बिसाइड्स द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यस आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट, ही शुड मतलब राम शुड, अगर उसको 1/5 हिस्सा चाहिए प्रॉफिट में, उसको 60,000 लाना था और वो लेकर आया आरटीजीएस से, मतलब बैंक में वो पैसा आया। तो इफ यू लुक एट दिस बिहाइंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल 60,000 इज व्हाट यू विल डू कि बैंक में मैंने डेबिट किया, पीछे राम में क्रेडिट हुआ। ये आपका जर्नल एंट्री है, याद रखिए। ओके,
तो ये एंट्री आएगी, इसके पहले जनरल रिजर्व की एंट्री आएगी और ये उसके बाद। इसके बाद में गुडविल नया पार्टनर लाया नहीं, बट गुडविल को रेज किया गया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये गुडविल रेज करने से क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चे इसको लिख तो लेते हैं बट समझ नहीं पाते। जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, द न्यू पार्टनर कमाने वाला है, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स के रेपुटेशन का, इज्जत का, अच्छे नाम का इस्तेमाल करेगा। उसके लिए ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ तो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। उसको आप सोचो कि गुडविल है, या तो वो गुडविल लेकर आए, बट अगर वो गुडविल लाने में असमर्थ है, नहीं ला सकता, तो गुडविल को रेज किया जाता है। गुडविल रेज कहाँ पर होता है? वेल, जो भी बच्चा जहाँ पर जन्म लेता है वहाँ पे रेज होता है नॉर्मली। गुडविल का जन्म स्थान एसेट है, क्योंकि गुडविल खुद एक एसेट है। तो सबसे पहली बात, ये गुडविल कहाँ पर लिखा जाएगा? ऑन दी एसेट साइड। तो अगर आप ऊपर देखो 60,000, बट ये तो डेबिट हुआ। क्रेडिट कहाँ पर? ये गुडविल किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। हमारे क्वेश्चन में किशोर और लाल, तो ये उनके क्रेडिट में, मतलब ठीक मेरे पीछे, उनके क्रेडिट में 3:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो है 45,000 एंड 15,000। दिस इज गुडविल रेज, सिंपल। इसमें कोई रीवैल्यूएशन नहीं है। ऊपर गुडविल का डेबिट और ये मेरे पीछे क्रेडिट, 45,000, 15, एंड दिस इज अ जर्नल एंट्री। अभी नहीं, थोड़ा आगे जाके हम करने वाले हैं। आगे पॉइंट नंबर 3, अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 20% जी। हमें काफ़ी ना आदत होती है, अगर हम दोस्त अच्छे हैं तो चापलूसी करने की, मस्का पॉलिश करने की। तो यहाँ पे हमको लैंड एंड बिल्डिंग को 20% का मस्का पॉलिश करना है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा 15,000। आउटर कॉलम में 90,000, ये एसेट प्लस है, इसके लिए क्रेडिट में आएगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 15,000। आगे जाकर इसका भी एक रीवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री जरूर आएगा। अगला, फर्नीचर एंड स्टॉक को 10% से कम करना है। एक एक करके, दोनों को इकट्ठा नहीं। पहले फर्नीचर को आप कर लीजिए, 600 आया, ये एसेट माइनस है, डेबिट में आप उसको लिख लेना, और स्टॉक को भी आप माइनस कर लो, डेबिट में आप लिख लेना। लिख लिया जी। इसके बाद में जितना आप बैलेंस शीट में लिख रहे हो, यू गेटिंग मार्क्स, बट बाकी जगह पे आपको मार्क्स नहीं मिल रहे। पॉइंट नंबर 5, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये सॉल्व करते कैसे हैं? न्यू रेशियो को पार्टनर्स के नाम के आगे आप लिख लीजिए, 3:1:1। राम, दैट इज द न्यू पार्टनर, उसका जो कैपिटल है विच इज 60,000 इज द बेस, क्योंकि वो मैंने बहुत बार कहा है शुद्ध कैपिटल है, प्योर। अगर राम को 1 रुपया कमाना है तो वो 60,000 लेकर आया, तो लाल को भी तो 1 रुपया मिल रहा है, वो भी 60,000 लाएगा, और किशोर को 3 गुना ज्यादा, तो वो 1,80,000। तो ये करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको रेशियो और जो कैपिटल है वो एक ट्रैक पे मिलते हैं। जो टोटल है इसका 3 लाख रुपया। इसका सेकेंड इफेक्ट, ऊपर था क्रेडिट, इस तरफ होगा डेबिट, और जो फर्क होगा 19-20 का, कम ज्यादा का, ओके, वो हम आगे जाके बैंक अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है एंड एडजस्टेड थ्रू द बैंक अकाउंट। राइट नाउ दैट वाज द लास्ट पॉइंट। आई हैव टू टोटल, बैंक अकाउंट को मैं टच मी नॉट, हाथ नहीं लगा सकता, तो ऊपर जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है उसको टैली कर लेते हैं। डेबिट साइड पे उसका जो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है विच इज 8,400, वो ओल्ड पार्टनर्स किशोर एंड लाल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 6,300 एंड 2,100, दैट इज द डेबिट। अनफॉर्चुनेटली नो मार्क्स। मेरे पीछे आएगा क्रेडिट, अनफॉर्चुनेटली नो मार्क्स। अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल को कंप्लीट करूं, जो ऑब्वियसली करना है, थोड़ा ध्यान से, किशोर का जो टोटल है वो डेबिट में हैवी है, तो क्रेडिट में एक डिफरेंस आता है 29,700, बट अगर आप लाल को थोड़ा गौर से देखो तो उसका क्रेडिट हैवी है, उसका डेबिट में डिफरेंस आता है 8,100। सो देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट डिफरेंसेस। किसी का तो कम है, किसी का तो ज़्यादा है, वो मैं आपको बोलता हूँ। राम का कोई तकलीफ नहीं है दोनों साइड पे। प्लीज़ ध्यान दीजिए कि डेबिट साइड, ओके, कहाँ पे, हाँ,
ये जो डिफरेंस है 8100, ये बैंक में हमको लिखना है, आई रिपीट हाँ। और जो क्रेडिट में डिफरेंस है 29700, ये भी हमको बैंक में लिखना है। ये जो टू बैंक था इसका सेकेंड इफेक्ट आया बाय लाल कैपिटल, और अभी जो आने वाला है, आई रिपीट हाँ, मैंने अगर पॉइंट आउट सही से नहीं किया, टू बैंक का सेकेंड इफेक्ट बाय लाल कैपिटल, और यहाँ पे आ रहा है बाय बैंक, तो उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा टू Kishore capital, because the differences is in Kishore account. Now before I go ahead and before I do any further totaling, just pay attention कि this 8100 जो लाल के डेबिट में है, क्या वो कैपिटल कम है कि ज़्यादा है? प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, वो डेबिट द रिसीवर है, बराबर। तो वो एक्सेस कैपिटल है, एक्स्ट्रा, जो हमने उठा के बैंक से उसको दे दिया कि लाल आप रखो ये एक्स्ट्रा। और ये जो कैपिटल है कौन सा, 29700, दिस वन जो किशोर के क्रेडिट में आया, वो है क्रेडिट द गिवर। किशोर वो पैसा लेकर आ रहा है क्योंकि उसका जो कैपिटल होना चाहिए था नई दुकान में उतना है नहीं, कम है, तो वो डेफिसिट कैपिटल है। जो डेबिट में डिफरेंस आता है, डेबिट में यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मेरे आसपास कुछ है नहीं, बट जो डेबिट में डिफरेंस आता है वो होता है एक्सेस कैपिटल, वो भी उठा के बैंक में डाल दो, ओके। और क्रेडिट में अगर जो डिफरेंस आता है वो होता है डेफिसिट कैपिटल, दोनों उठा के बैंक में ही डालना है। और बैंक अकाउंट को इसके बाद में आपको टोटल करना है, तो कर लेते हैं। क्रेडिट में द डिफरेंस कम्स टू 111,600 विच इज द बैलेंस विच विल गो टू द बैलेंस शीट। एंड एट द एंड दुआ करते हैं कि हमारा टोटल दोनों साइड पे सेम आ जाए, विच इज 4,20,000। दिस इज नॉट विजयी भव, नहीं भाई, ये आपके सम का मैं बोल सकता हूँ 30%, 70% जर्नल एंट्रीज है, तो वो भी तो हमको करने हैं। जर्नल में आपने जैसे ये लेजर सॉल्व किया उसी तरीके से उसी स्टेप्स में आपको सॉल्व करना है, ओके। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखो, ऊपर के बैलेंस शीट में जो भी आप बैलेंस शीट में न्यू बैलेंस शीट में लिखते हो उसका कोई एंट्री नहीं आता, क्योंकि बैलेंस शीट कभी डेबिट क्रेडिट नहीं होता। बट जनरल रिजर्व जो आपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, कहाँ पर, ठीक मेरे पीछे, बाय जनरल रिजर्व 9 and 3,000, ये आपने क्रेडिट में लिखा है, याद रखना। तो पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, मतलब किशोर क्रेडिट होगा, लाल क्रेडिट होगा, बराबर। डेबिट कौन होगा, जनरल रिजर्व, ओके। तो ये उल्टा तरीका है, आपको ध्यान जनरल रिजर्व पे नहीं देना, आपको ध्यान देना है कि कैपिटल अकाउंट में आपने कहाँ पे लिखा क्रेडिट, तो कैपिटल क्रेडिट है किशोर और लाल, जनरल रिजर्व डेबिट होगा। हाउ डू यू शो दिस, आप जहाँ पे भी जर्नल लिख रहे हो वहाँ पे जनरल रिजर्व डेबिट 12,000 एंड द डिस्ट्रीब्यूशन टू किशोर कैपिटल टू लाल कैपिटल 9,000 and 3,000. This is distribution of general reserve. So from the balance sheet, which balance sheet? Old balance sheet. Above. This is the only item जिसका डेबिट क्रेडिट होता है, बाकी सारा क्रेडिटर्स, कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, ये सारा पूरा स्टोरी बैलेंस शीट न्यू में चला जाता है, जिसका कोई जर्नल एंट्री नहीं है। इट्स जस्ट अ ट्रांसफर, नो जर्नल एंट्री। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसके लिए उसका जर्नल एंट्री। उसके बाद में पॉइंट नंबर 1 पर आप आए और उसमें 60,000 आरटीजीएस के माध्यम से राम कैपिटल लेकर आया, जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले दिखा दिया है, बट दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। राम नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल। तो बेसिकली कैपिटल को लाना आपका सेकेंड जर्नल एंट्री है, बट यहाँ पे हम डेट लिख रहे हैं 1 अप्रैल 2018। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल, बीइंग कैपिटल bought through RTGS by Ram. Okay, तो this is the capital that he brings। and इसके बाद में question says, क्योंकि हम सीक्वेंस में ही जा रहे हैं, कि गुडविल शुड बी रेज्ड। तो 60,000 गुडविल को रेज करते हैं, बट आपने रेज किया कैसे? एक तो अपने ऊपर के बैलेंस शीट में लिखा, बट वहाँ से एंट्री लाना थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे देख लो आपने कहाँ पे लिखा, दिस गुडविल इज ऑन द क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, गुडविल को नहीं, पार्टनर्स को क्रेडिट करना है।
गुडविल को आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, बिकॉज गुडविल इज एन एसेट, आप वो प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिए, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। गुडविल एसेट है तो वो डेबिट हुआ, और जो पार्टनर्स का गुडविल है वो उनके रेशो में हमने क्रेडिट कर लिया। किशोर कैपिटल एंड लाल कैपिटल 45,000 15,000। मैथ्स यहाँ पे करने की जरूरत नहीं बिकॉज ऑलरेडी आपने पहले कर लिया है। सो गुडविल रेज्ड इज व्हाट यू डिड नेक्स्ट। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 3, अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। एंड पॉइंट नंबर 4, फर्नीचर एंड स्टॉक आर डेप्रिशिएटेड। बेसिकली दीज आर रीवैल्यूएशंस। कुछ रीवैल्यूएशंस आप डेबिट में लिखते हो, मतलब फर्नीचर और स्टॉक का। कुछ रिवैल्यूएशंस आप क्रेडिट में लिखते हो। अभी आपकी मर्जी, आप पहले डेबिट रिवैल्यूएशंस को ले लीजिए, बाद में क्रेडिट, या उल्टा, जो आपकी मर्जी है। ओके, बट सारे रिवैल्यूएशंस को आप कंसिडर कीजिए जर्नल एंट्री में। पहले मैं डेबिट का ले रहा हूं, तो ये जो एडजस्टमेंट का अकाउंट है या आप रिवैल्यूएशन कह सकते हो, ये डेबिट है। और ये जो टू फर्नीचर टू स्टॉक वो ऑब्वियसली क्रेडिट है। सो दीज आर the debit revaluations for which P&L adjustment is debit. So in my next journal entry, the adjustment account or the revaluation account will be debit 600, which involves two revaluations, two furniture 600, two stock 6,000, being debit revaluations recorded. आप पहले डेबिट लिख लो बाद में क्रेडिट, या पहले क्रेडिट लिख लो बाद में डेबिट, बट सारे आप कवर अप कर लीजिए। अगला क्रेडिट का रिवैल्यूएशन जो एक ही था, लैंड एंड बिल्डिंग। आप जब इसकी बात करो, लैंड एंड बिल्डिंग ये क्रेडिट में है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को क्रेडिट मत करना, एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना। लैंड एंड बिल्डिंग तो डेबिट में आ जाएगा। इसका जर्नल एंट्री कुछ इस प्रकार है। सो लैंड एंड बिल्डिंग मैंने कहा डेबिट में आ जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, देयर वाज ओनली वन आइटम 15,000 बीइंग क्रेडिट रिवैल्यूएशन रिकॉर्डेड। ओके, तो आपने पहले डेबिट रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड किया, बाद में क्रेडिट रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड किया। देन नेक्स्ट आपने क्या किया, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेड कि कैपिटल को रेशो में लाओ। हमने वो किया, कहाँ पर आप पीछे देख लीजिए, हियर बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट देन ये तो बैलेंस शीट में है, इसका कोई एंट्री नहीं है। और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे था टू बैलेंस, अब बैलेंस का भी कोई एंट्री नहीं आता, तो बेसिकली दीज डू नॉट हैव एनी एंट्री। आगे आपने क्या किया, ये जी प्रॉफिट था, इसे लिखा, तो इसकी एंट्री आ जाएगी। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू किशोर टू लाल, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। सो व्हेन यू सॉल्व सच अ क्वेश्चन, ऐसा कोई स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एंट्री 1 एंट्री 2 एंट्री 3 ऐसे होता नहीं। आपको सारे एंट्रीज कवर अप कर लेने हैं, वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे अगर होता है तो चल जाएगा, आपको कोई फांसी उसके वजह से मिलने वाली नहीं है। ओके, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन शेयर। इसके बाद में हमारी गाड़ी कहाँ पर गई, हमने बैंक अकाउंट को नहीं छुआ, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आए। और ये जो किशोर का कैपिटल है वो टोटल हुआ और ये डिफरेंस आया 29,700 जो हमने बैंक में भेजा। तो उसकी एंट्री दिखती किससे, ये बैंक की बात कर रहे हैं, मेरी उंगली वहाँ तक नहीं जा रही है। ये बैंक क्रेडिट में है, किशोर के क्रेडिट में। हाँ, तो डेबिट में बैंक आ जाएगा, तो डेबिट में बैंक आ जाएगा जी। सो बैंक अकाउंट डेबिट 29,700 to Kishore Capital. This was the deficit capital, not the excess. This was the deficit capital, being deficit capital adjusted through bank account. अब यही चीज आपको लाल के कैपिटल में भी नजर आएगा, बट द डिफरेंस इज ऑन द डेबिट साइड। सो जब इसकी एंट्री की बात करें तो आपको बोलना है लाल इज डेबिट, तो टू बैंक क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज ऑलमोस्ट आर last journal entry. So Lal capital is debit 8,100. This was the excess capital जो debit side पे आता है to bank, being excess capital adjusted through bank account. इतना कुछ आपने अगर कर लिया और आप समझ गए, इसके बाद आपको ये समझना था कि ये
टोटल हुआ और वो चला गया बैंक में, और बैंक में जो आंसर आया वो था बैलेंस। बैलेंस का कोई एंट्री नहीं आता, और ऊपर का बैलेंस शीट टोटल हो गया, उसका भी कोई एंट्री नहीं आता। सो देर इज नो मोर फर्दर जर्नल एंट्रीज। दीज आर ऑल द जर्नल एंट्रीज, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 8 ऑफ देम। एंड ये अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो लास्ट में आपको ग्रैंड टोटल करना है, द एडिशन ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट, विच इज 1,99,800। whenever they say journal entries, लेजर आप थोड़े जल्दी सॉल्व करो, जर्नल जितने हो सके। ऐसा नहीं है कि आप 8 है तो 8 के 8 आ जाएगी, नहीं, बट टाइम ज़्यादा मत लेना। वो जो 20-25 मिनट्स का टाइम होता है एग्जैक्टली आपको उतना ही लेना है। अगर पूरा ना हो वो क्वेश्चन आंसर आपको वहीं पे रहने देना है, और जो अगला है उसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि सर पूरे पेपर में, क्योंकि टाइम कम था, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, ओमिट कर लिया। नहीं, वो बेवकूफ़ी का काम होगा, वो मत करना। आप भले ही सारे क्वेश्चंस में एक एक मार्क या हवा पे रहने दो, बट एक पूरा क्वेश्चन कभी भी पूरा कंप्लीट इनकम्प्लीट मत रखना। आई होप वो एडवांस वो एडवाइस आप समझ गए हो। ओके, और आगे हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू होते रहेंगे। आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन और ये सोल्यूशन समझ आ गया, पसंद आ गया, तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। कोई गड़बड़ होगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर आप कमेंट पूछ सकते हो। और आगे काफ़ी लेक्चर्स आने वाले हैं, बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे थोड़े थोड़े करके। तब तक आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और अगर आप यहाँ पे पुराने हो तो दूसरों के साथ में हमारे लेक्चर वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।